Friends, now let's move to the chapter number 10th of grammar, non-finite verbs. What is non-finite verb? There are two types of verbs, finite verbs and non-finite verbs. And I explained as two brothers, finite and non-finite. Non-finite have three sons. These are participles, infinitives and gerund. So what is difference between finite and non-finite verbs? So finite verbs changes its form according to the subject and number. On the contrary, the non-finite verbs remain the same. And the participles act as adjectives, and it is used with main verbs, helping verbs. Gerund acts as a noun. Noun can be subject or object. So let's see the chapter. Read the sentence. I like reading. I like reading. So like is finite verb. It will change its form according to the subject, number and tense. If it is in the past, then we use it as liked, but reading will remain the same. So reading is non-finite verb. Gunjan loves to dance. Loves, finite verb. And if I love, then there will be love only. And to dance will remain the same. To dance will remain the same as dance. To dance is a non-finite verb. Infinitive. Reading is gerund. And Ruchi conducts coaching class. So coaching is participle, but it acts here as an adjective. So this is the explanation about finite and non-finite. फाइनाइट वर्ब है वो टेंस पर्सन और नंबर के मुताबिक अपना फॉर्म चेंज करता है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब है वो सेम रहता है. और मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि दो ब्रदर्स हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. जो नॉन फाइनाइट है उसको तीन बेटे हैं, पार्टिसिपल्स, इन्फिनिटिव्स एंड जीरन. और उसमें पार्टिसिपल के दो रूप हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. ये एडजेक्टिव का काम करते हैं. जीरन है वो नाउन का काम करता है, और इन्फिनिटिव्स है वो टू वाला वर्ब होता है, वो सेम ही रहता है. एंड इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट इन्फिनिटिव्स. सो द वर्ड्स इन बोल्ड आर फाइनाइट वर्ब्स as it changes its form, like loves, conducts, and the underlined words are non-finite. We know that the finite verb is the main verb in the sentence. It has subject and it changes the form to show tense and number. Tense और number दिखाने के लिए वो change होते रहते हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब है वो ऐसा नहीं करता है. वी गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो गो रखा है हमने. एंड सी गोज थर्ड पर्सन सिंगुलर है
तो हमने वहाँ पे गोज रखा है. सो दिस इज. एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड डज नॉट चेंज फॉर्म्स टू शो टेंस और नंबर. लेकिन मैंने बताया वैसे नॉन फाइनाइट वर्ब है वो इट डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट और नंबर. Ajay is talking to Smith. So Ajay is talking to Smith. और अजय के बाद I am, लेकिन टॉकिंग का टॉकिंग ही रहेगा. They were talking. Look at here. टेंस दोनों अलग अलग है, लेकिन हमने टॉकिंग यहाँ पे यूज किया है. सो दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब. नाउ non-finite verbs are of three kinds: participles, and participles have two children: present participle and past participle. Now then infinitives and gerund. So now let's see the first exercise. Circle the finite verbs and underline the non-finite verbs. One has been given. I am painting the fence. So aim है वो finite verb है और painting है वो non-finite verb है. मीन्स मैंने ऐसे लिखा I was painting. ये past में है तो भी painting ही रहेगा, because it is a non-finite verb. Now let's see, my sister is writing a poem. So here is finite verb and writing is non-finite verb. You can understand. अगर sisters होता, my sisters तो are हो जाता, my sisters are writing a poem, लेकिन राइटिंग का राइटिंग ही रहेगा. नंबर बताना है, टेंस बताना है. माई सिस्टर वॉज राइटिंग, पास्ट टेंस बताए फिर भी राइटिंग का. तो दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब. करण सिंग्स वेल, करण सिंग्स वेल. तो सिंग्स है वो फाइनाइट वर्ब है. क्यों? कि वो अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन and tense it changes. Karan sing means this is the present tense and third person singular. Karan is third person singular, that's why Karan sings. अगर I होता तो I sing होता. अगर past होता तो Karan sang. तो जो verb है tense के मुताबिक चेंज होता है, नंबर के मुताबिक चेंज होता है, तो वो finite verb होता है, flexible. We know about that decision. We know, finite verb. अगर he होता तो he knows, तो मैं s लगाते. अगर past होता तो we knew, KNW. तो ये flexible जो tense जो verb है वो finite verb है. Were you listening to the radio this morning? Were finite and listening non-finite verb. अगर वो पास्ट में, अगर प्रेजेंट में करोगे आर यू लिसनिंग, तो भी आर चेंज हो सकता है लेकिन लिसनिंग चेंज होगा नहीं. नाउ वी मेड अ लॉट ऑफ नॉइस, वी मेड अ लॉट ऑफ नॉइस. सो मेड है वो फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है. अगर उसका सिंपल प्रेजेंट करेंगे तो वी मेक अ लॉट ऑफ नॉइस. तो यहाँ पे जो मेक है उसका, मेड है उसका मेक हो सकता है. सो दिस इज फाइनाइट वर्ब. Now, are we to write this story for homework? So यहाँ पे are is finite verb है, लेकिन to write infinitive वो नॉन फाइनाइट का बेटा है. फाइनाइट, इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट. वो कोई भी चेंज टेंस बनाओगे, कोई भी टेंस में कन्वर्ट करोगे, लेकिन टू राइट ही रहेगा. मतलब आर वी प्रेजेंट टेंस, आर वी टू राइट, और वर वी यहाँ पे
WERE वर्ब हम लगाएंगे पास्ट का तो भी टू राइटिंग रहेगा. सो दैट्स वाई दिस इज. नाउ लेट्स सी द लास्ट वन ऑफ ए. मंजुला नोज हाउ टू नीट. देखो मंजुला नोज थर्ड पर्सन सिंगुलर. I, we, you, he, she, sorry, I, we, you, and they. These are the person with whom, with that we don't use SES or IES. But with third person, he, she, it, singular, we use SES and IES. So Manjula knows, Manjula third person. How to knit, simple present tense. अगर हम बोलेंगे सिंपल पास्ट में मंजुला न्यू हाउ टू नीट, तब भी टू नीट ही रहेगा. वो पास्ट टेंस होता है तो टू नीटेड नहीं हो सकता है. सो मंजुला नोज हाउ टू नीट. सो एक ऐसा वर्ब है जो चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल है, वो फाइनाइट वर्ब है, और जो चेंज नहीं करता है अपना फॉर्म, सेम ही रहता है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है. तीन है पार्टिसिपल्स, इन्फिनिटिव्स एंड जीरो. नाउ लेट्स सी. फर्स्ट लेट्स सी द पार्टिसिपल्स. तो पार्टिसिपल्स दो प्रकार के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, और ये दोनों ज़्यादातर एडजेक्टिव का काम करते हैं. मदर इज वॉचिंग टीवी, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ING वाला है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो वॉचिंग टीवी, प्रेजेंट पार्टिसिपल. अरुण हैज रिटन दिस एसे, और रिटन, राइट, रॉट, रिटन. सो थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और फोर्थ फॉर्म होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. वी हैव रिटन a lot of essays. So here writing and written, these are for ING वाला है वो present participle है, वो और written है वो past participle है. The words in the boards are participles. A participle is a form of verb that is used to indicate present or past action. जो participle है verb का एक form है जो present और past action बताता है. Like other non-finite verbs, it cannot stand alone and does not change its form. और दूसरे non-finite की तरह वो अकेला मीनिंग बना सकता नहीं है, और वो फॉर्म अपने फॉर्म में चेंज भी करता नहीं. देखो अरुण हैज़, लेकिन रिटर्न ही रहा. यू, वी हैव, तो भी रिटर्न रहा. और मदर इज वॉचिंग, माई फ्रेंड्स प्लूरल है, फिर भी यहाँ पे वॉचिंग ही रहेगा. दिस इज द participles, present participle and past participle. Now, a present participle is form of the verb ending in ing. It may be used both for to form the verb tense and an adjective. जो verb tense के लिए भी यूज होता है और adjective के लिए भी यूज होता है. The sun is shining, sinking into the sea. तो यहाँ पे डूब रहा है, the sun is sinking. तो यहाँ पे क्रिया हो रही है, यहाँ पे क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पे वो वर्ब टेंस का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है. और दूसरे में आई टुक सम पिक्चर्स ऑफ द सिंकिंग सन. हाउ इज द सन सिंकिंग, एडजेक्टिव. We have seen the sun is sinking. It shows the tense. And next one, sinking sun. How is the sun sinking? Adjective. So present participle acts as an adjective also, and it forms verb tense. The present participle may combine with auxiliary verbs be and have to form the continuous and perfect continuous forms verbs. Be verbs means am, is, are, and have, has, had. Have, has, had जो है वो
परफेक्ट टेंस के लिए हम यूज करते हैं, मीन्स आई हैव रिटन, शी हैड रिटन, ही हैज रिटन. सो सी हैव, हैज एंड हैड के साथ हम V3 यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल. एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल बी के साथ यूज करते हैं. आई एम राइटिंग, वी आर राइटिंग, ही इज राइटिंग, सी वॉज राइटिंग, दे वर राइटिंग. सो दिस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल में combined with auxiliary verbs be and have to form continuous and perfect continuous verb forms. They are practicing for the annual program. Continuous. Helping verb be, auxiliary, primary auxiliary are practicing, and they have been practicing. They have been practicing. So here also we have used present participle with a present perfect continuous. Now, and past participle used to form the perfect tenses. We have, मैंने बोला past जो कोई भी perfect tense हमें यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, तो हमें उसके साथ V3 यूज करना होता है. मीन्स पास्ट पार्टिसिपल हमें यूज करना होता है. मीन्स वी हैव स्पोकन टू द डेकोरेटर्स, present perfect, and Suman is eating boiled potatoes. तो यहाँ पे पहले में टेंस बताया है और दूसरे में boiled पर हाउ द पोटेटोज आर एडजेक्टिव. तो ये हमें जो पास्ट पार्टिसिपल है वो टेंस भी बताता है और एडजेक्टिव का काम भी करता है. Now let's see B. Complete these sentences with the present participle forms in the brackets. Present participle means ing wala verb. Hearing the loud noise, I went to see what had happened. Hearing. While I was playing outside, Jane had come and gone. ing. Opening the door, Mitul went out. Opening. He was practicing for the singing competition a little while back. Practicing. Present participle. She was looking out of the window when she saw two parrots on the tree. Then 6-1. I think I will be, future continue, I will be studying in Kolkata this year. Study. So in all continued tense, present participle can be used as in order to show the continued tense. And smiling pleasantly, she welcomed the guest into the house. Present participle. Seeing that storm had blown away, I went out into the garden. So we have used here present participle. Present participle may work as to show the tense and as an adjective. Now complete these sentences with the past participle forms of the verbs. V1, V2, V3. We will have to use here V3. And V3 is used as an adjective. Look at here. I have, and tense also. I have reminded her to bring the compass. One has been given. And past participle are used in all perfect tenses and all the passive tenses. Keep in mind. जो past participle है वो सब perfect tenses में यूज होते हैं और सब passive sentences में वो यूज होते हैं. फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में यूज होते हैं और जितने भी पैसिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें इट्स एसेंशियल इन ऑल द पैसिव सेंटेंसेस. Rita has broken, present perfect, her glass. I hope you will have, future continuous.
Future perfect continuous. I hope you will have finished your course by evening. It has become, became, come, became, become. V3 become. It has become very difficult to get into good school. Present perfect have, has, and V3, and will have V3 future perfect. We were happy that all the tickets had sold out. Subject had and V3 past perfect. मैंने आपको बताया ऑल परफेक्ट टेंस में ये V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं. They have decided to take the bus to Agra. They have decided. They have decided. Their subject have, has, and V3 present perfect. It was one of the best holidays I have ever spent here. I have present perfect. And it was very late and Ali had eaten his lunch. Had and V3 past perfect. तो have, has V3, had V3, shall, will have V3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में हम V3 का यूज करते हैं और ऑल पैसिव में हम V3 यूज करते हैं. Now let's see D. Write whether the words in the bold perform the functions of verb or an adjective. तो इसमें जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ड्स हैं, राइट द वेदर द वर्ड्स इन द बोल्ड, जो वो बोल्ड वर्ड्स है वो वर्ब का काम करते हैं या एडजेक्टिव, वो हमें देखना है. द फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, तो कैसे से पूछोगे तो आपको एडजेक्टिव मिलेगा. ब्यूटीफुल पिक्चर, कैसा, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव. तो हाउ इज द एक्सपीरियंस फ्राइटनिंग, एडजेक्टिव. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील, कैसी, हिंदी में कैसी. अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमें कैसी से पूछना है. हाउ इज द फील, इंटरेस्टिंग, तो वो एडजेक्टिव ही होगा. इट्स अ वेरी इजी वे टू फाइंड आउट वेदर इट्स एडजेक्टिव और अ वर्ब. अन्ना फेल्ट सैड फॉर फ्राइटनिंग द लिटिल बॉय. तो यहाँ पे फ्राइटनिंग है वो वर्ब का काम कर रहा है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड यू. हाउ इज द बॉय, अ लिटिल बॉय. तो लिटिल है वो एडजेक्टिव है, लेकिन फ्राइटनिंग है वो लिटिल नहीं, वो एडजेक्टिव नहीं है. नाउ राहुल रिपेयर्ड अ ब्रोकन स्टैच्यू. तो ये पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो उसने एडजेक्टिव का काम किया. अब पास्ट पार्टिसिपल, हाउ इज द स्टैच्यू ब्रोकन. हाउ इज द स्टैच्यू ब्रोकन, कैसा है, टूटा हुआ, तो ये एडजेक्टिव होगा. हाउ से क्वेश्चन करना और कैसा है तो आपको एडजेक्टिव. इट्स अ वेरी इजी वे टू फाइंड आउट इट. आई हैव नॉट स्पोकन टू मलिका फॉर अ ईयर नाउ. तो यहाँ पे देखो हैव के साथ V3 आया है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है. और हाउ से क्वेश्चन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. हाउ आई हैव नॉट स्पोकन टू मलिका फॉर अ ईयर. हाउ स्पोकन, नथिंग, नथिंग विल बी फाउंड. सो स्पोकन है वो पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पे वो वर्ब का काम, मतलब टेंस बताने का काम करता है. ललिता लाइक्स हर न्यूली पेंटेड हाउस. कैसा हाउस है, पेंटेड, न्यूली पेंटेड. तो न्यूली है वो भी एडजेक्टिव है, लेकिन हमें पास्ट पार्टिसिपल वेदर इट इज एडजेक्टिव और वर्ब दैट इज टू फाइंड. दैट्स वाई द पेंटेड वो हमें पास्ट पार्टिसिपल है, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है. हैविंग बॉट अ गिफ्ट, तो यहाँ पे ये वर्ब है. हाउ इज द गिफ्ट, नथिंग, बट हैविंग बॉट, हैविंग के साथ आया, दैट इज वो मतलब टेंस दिखाने का काम कर रहा है. जो बॉट है पास्ट पार्टिसिपल, वो टेंस दिखाने का काम कर रहा है. हैविंग बॉट अ गिफ्ट, जुसिन लेफ्ट द शॉप इमीडिएटली.
Viru had his room painted blue. How is the room? Painted. So Viru had his room painted blue. This is verb. How से क्वेश्चन नहीं मिलेगा. तो now how से हमें कुछ मिलेगा नहीं. Now E. Now combine the sentences using present participle. Say the sentence allowed in the class. ये और प्रैक्टिस के लिए फिर भी हम यहाँ पे कर रहे हैं. देखो, Jane picked up his bat. He ran to the park. तो ये having से भी यूज कर सकते हैं. Having picked up, लेकिन हमें यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है, इसलिए पिकिंग अप हिज बैट, जे ran to the park. तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने पिकिंग यूज किया. He walked out of the house. He got into taxi. So walking out of, क्योंकि मैं having का यूज कर रहा हूँ, वो भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है. So walking out of the house, he got into taxi. Mother heard some noises. She woke up. So hearing some noises, mother woke up. So hearing, ये present participle है. Now fourth one, she is an author. She is very creative and imaginary. तो यहाँ पे अस्तित्व बताता है. प्राइमरी ऑक्सिलरी है एम इज आर, तो बी का बीइंग हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. बी बीइंग, बिन, बी बीइंग, बिन. सो प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग एन ऑथर, शी इज वेरी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, क्योंकि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है. V1 V2, तो बी बीइंग एंड B3 एंड बिन, दैट इज V3. He saw that it was rainy day. He took an umbrella with him. To seeing, seeing that it was rainy day, he took an umbrella with him. See का saw है, वो V2 है, past है, उसका हमने seeing यूज किया, क्योंकि present participle हमें यहाँ पे यूज करना है. Madhu did not have enough money, so she could not buy more vegetables. सो हैव का हैविंग करेंगे. नॉट हैविंग इनफ मनी, महुआ कुड नॉट बाय मोर वेजिटेबल्स. नीरज टुक ऑफ हिज शूज. टुक ऑफ, टेकिंग ऑफ. टुक है ओ V2 है. टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, क्योंकि सिंपल पास है. Neeraj took off his shoes. He tiptoed into the house. So taking off his shoes, Neeraj tiptoed into the house. Infinitives. पहले हमने पार्टिसिपल, ये नॉन फाइनाइट के चिल्ड्रन है. नॉन फाइनाइट के पहले पार्टिसिपल, उसके दो बाय, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. अब इन्फिनेटिव, जो इन्फिनेटिव है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है ज़्यादातर, कि टू वाला वर्ब होता है वो इन्फिनेटिव होता है. पॉल वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, और वो सेम ही रहेगा. जैसे इसकी ये खूबी है नॉन पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट की, कि वो अपना फॉर्म चेंज करते नहीं है अकॉर्डिंग टू द टेंस और पर्सन. दे आर हेल्पिंग अस ऑर्गेनाइज द इवेंट. द वर्ड्स इन बोल्ड आर इन्फिनेटिव्स. द इन्फिनेटिव इज सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब विद और विदाउट वर्ड टू. टू के साथ भी होता है और विदाउट टू भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर टू वाला वर्ब होता है वो इन्फिनेटिव होता है. द इन्फिनेटिव विदाउट टू इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव. जो टू नहीं होता ऐसे वर्ब होते उसको
bare infinitive कहते हैं. And the infinitive with to is called to infinitive. So we do like them, bare infinitive, we do like them. And I will try to work, I will try to work. तो बेटा यहाँ पे ट्रू वर्क है वो सेम रहेगा, वहाँ पे लाइक है वो सेम रहेगा, कोई भी पर्सन चेंज करो, कोई भी टेंस चेंज करो. वी यूज द इन्फिनेटिव टू शो द पर्पस, रिजल्ट और टू एक्सप्रेस कमेंट. पर्पस, रिजल्ट और कमेंट एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं. टू गेन हिज ट्रस्ट, यू मस्ट शो दैट यू आर ऑनेस्ट एंड रिलायबल. तो to gain his trust, to infinitive, you must show that you are honest and reliable. The bare infinitives allows modal auxiliaries such as can, could, primary and modal. These are the modal auxiliaries. Can, could, shall, will, may, might, and so on. Verbs such as see, watch, hear, feel, sense, let, help, make, and so on. So we can try. तो try है वो ऑक्सिलरी कैन के साथ, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ यूज हुआ है. अगर could करेंगे पास्ट में, I can read, तो रीड ही रहेगा. आई कैन ट्राई, तो ट्राई ही रहेगा. उसका पास्ट में यूज करेंगे तो आई कुड ट्राई, तो भी ट्राइड नहीं होगा, हम पास्ट की बात कर रहे हैं. दैट इज, सो वी कैन ट्राई अ न्यू रेसिपी. सो टू इन्फिनिटिव्स यूजुअली फॉलोज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस. जो टू वाला वर्ब है उसके पहले वर्ब होता है. यूज इट आफ्टर एडजेक्टिव एंड वर्ब सच एज अफोर्ड, एक्सपेक्ट, ऑफर, रिफ्यूज, एग्री, होप, plan, seem, arrange, learn, pretend, threaten, decide, manage, promise, want. तो ऐसे वर्ड है, ऐसे वर्ब है, उसके साथ हम टू वाला वर्ब यूज करते हैं. और ऐसे आप मीनिंग करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा. रश्मि वॉन्ट्स टू बैक, तो वॉन्ट आया देखो, तो उसके साथ बी रहे, तो टू वाला वर्ब भी रहेगा. दैट इज टू इन्फिनिटिव. एंड सुषमा वॉज ईगर, जो ईगर आया तो उसके साथ भी टू वाला वर्ब रहेगा. अगर रश्मि वांटेड, जो ये सिंपल प्रेजेंट में, अगर सिंपल पास्ट में करोगे तो भी बैक टू बैक ही रहेगा, क्योंकि ये क्वालिटी है. नॉन फाइनाइट वर्ब वो चेंज होते, उसका फॉर्म चेंज होता नहीं, चाहे कोई भी टेंस चेंज हो जाए. लेकिन फाइनाइट वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होते हैं. राना होप्स टू फिनिश, राना सिंपल प्रेजेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर. अगर राना हॉप्ड सिंपल पास किया होता तो भी टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय मंडे. लेट्स सी द एक्सरसाइज. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ द टू इन्फिनिटिव forms of the verbs in the bracket or in the box. Buy, think, remind, study, bring, complete, call, recite, wear, help. तो ये verbs है, उसको हमें infinitive यूज करना है. तो one has been given. I must remember to remind Salim about. तो remember है main verb है, जो main verb के साथ वो यूज होता है. About my book when I meet him tomorrow. He forgot to take it yesterday. I am writing to thank you for your help. I am writing. So to think. Infinitive. To infinitive. अगर I was writing तो अभी उसका जो फॉर्म है वो चेंज होगा नहीं. Jacob offered to help. Offered. Afford. Offered to help. ये पास्ट है तो भी टू वाला वर्ब भी रहेगा. और फोर्थ वन, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस स्केल्स टू वे. तो सिंपल प्रेजेंट है तो भी वो अपना फॉर्म चेंज करेगा नहीं. आई स्टेड अप लेट लास्ट नाइट टू कंप्लीट माई केमिस्ट्री होमवर्क. सो स्टेड सिंपल पास्ट,
फिर भी टू वाला वर्ब भी रहेगा वहाँ पे। आई वेंट शॉपिंग लास्ट ट्यूसडे टू बाय अ प्रेजेंट फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे। टू बाय, तो पास्ट की बात करें फिर भी वो अपना फॉर्म चेंज करेगा नहीं, क्योंकि ये टू वाला इन्फिनेटिव है। गिनाज मदर वॉन्ट्स टू स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम। टू स्टडी सिंपल प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर, गिनाज मदर, दैट्स वाई वॉन्ट्स। सिंपल प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, लेकिन इन्फिनेटिव है वो चेंज होता नहीं। राजीव हैज प्रॉमिस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट हैव हैज एंड V3। टू कॉल आफ्टर reaches उदयपुर। द फ्रीडम फाइटर वॉज इन्वाइटेड टू प्रिसाइड ओवर फंक्शन। वॉज इन्वाइटेड सिंपल पास्ट पैसिव, तो भी वो सेम ही रहेगा। तो हम जैसे कहते हैं वैसे जो इन्फिनेटिव्स हैं, टू वाला इन्फिनेटिव और इन्फिनिट और नॉन फाइनाइट की खासियत है कि वो अपना फॉर्म टेंस और पर्सन के मुताबिक या नंबर के मुताबिक चेंज होता नहीं है। नाउ लेट्स सी जी। कंबाइन दिस सेंटेंसेस यूजिंग infinitives. Say the sentences loud in class. This is for oral practice, but let's do here. They both decided. They ended their quarrel. देखो तो यहाँ पे हमें जो सेंटेंस है उसको कैसे बनाना है वो समझना है। हमें इन्फिनेटिव यूज करके ये सेंटेंस बनाने हैं। तो इन्फिनेटिव क्या है आपको पता है। दे बोथ डिसाइडेड टू एंड देयर क्वारल। दे बोथ टू एंड, और यहाँ पे जो एंड है उसको हमने वर्ब बना दिया है। टू एंड डिसाइडेड सिंपल पास्ट, टू एंड देयर क्वारल अंत लाना है। शी विजिट्स the hospital, she looks after small children. So she visits the hospital to look. जो look है वो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स था, लेकिन हमें उसको इनफाइनाइट में यूज करके हमें इसको इस सेंटेंस को बनाना है। So she visits the hospital to look after small children. तो to look है वो इन्फिनेटिव है, वो हम यूज कर रहे हैं। फोर्थ वन, तनुजा इज इन हरी, शी इज टेकिंग द ट्रेन टू जैसलमेर। तो तनु इज इन हरी टू टेक द ट्रेन टू जैसलमेर। आई हैव फॉरगॉटन टू राइट हियर इज, बट तनुजा इज इन हरी टू टेक, तो टू टेक है वो इन्फिनेटिव है। टू टेक है वो इन्फिनेटिव है जो हमें यहाँ पे यूज करना है। He took out his lunch box. He will share his lunch with his friends. He took out his lunch box to share. तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट निकाल देते हैं और बाद में जो वर्ब है उसके साथ टू वाला टू लगा देते हैं, इन्फिनिटिव हो जाता है, बाद में सेंटेंस बना लेते हैं। सो ही टुक्स आउट हिज लंच बॉक्स टू शेयर हिज लंच विथ हिज फ्रेंड्स। शी डज नॉट हैव एनी मनी विथ हर, शी कुड नॉट बाय पेस्ट्री। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्ड है दूसरे सेंटेंस में वो निकाल देना है, सब्जेक्ट खास करके पहले निकालना है और बाद में टू वाला वर्ड ज्वाइन करके हमें बनाना है सेंटेंस। She does not have any money to buy a pastry. To buy. तो यहाँ पे हमने she could और not ये सब निकालना पड़ेगा और हमें सेंटेंस से वो पहले जो नोट आ गया इसलिए वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, टू वाला वर्ड लगा के सेंटेंस बना देना है। सो she could not ये निकालना है, to buy a pastry ऐसे लगाना है। This is the function of infinitive. I am going to Chennai tomorrow. I will meet my cousin. तो उसमें से वर्ब निकालो, meet है लास्ट सेकंड में, तो उसके साथ टू लगा दो, सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। I am going Chennai tomorrow to meet my cousin.
So it's very easy. Omit subject, helping verbs and add to the verb in the second sentence. Now, Dheeraj went to the shop. We will have to remove he and will from here and to add to buy some biscuits. So, Dheeraj went to the shop to buy some biscuits. So, these were the use of infinitives. Now, let's see the exercise number H. Exercise H. Tick the sentences that are correct and correct the incorrect sentences. Dinah cannot come with me to the station. Dinah can too. देखो एक रूल है कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद टू वाला वर्ब कभी आता नहीं है, उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, टू इन्फिनिटिव आता नहीं, खास याद रखना। और मॉडल ऑक्सिलरी उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है और टू इन्फिनिटिव है वो उसके साथ कभी आता नहीं है। इसलिए हमने किया डायना कैन कम विथ मी टू द स्टेशन। वाई थ्रो इट ऑल वे, वाई थ्रो, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। वाई थ्रो इट ऑल वे, ऐसा देखें तो ग्रामर की दृष्टि से यहाँ पे हमें डिड और डू लगाना चाहिए। वाई डू, वाई थ्रो इट ऑल अवे, यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट है और ना तो डू डज है ना तो डिड है, फिर भी हमें यहाँ पे इन्फिनिटिव देखना है, तो ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट है। लेकिन ऐसे देखें तो वाई डू वी थ्रो इट ऑल वे, देन इट इज करेक्ट। मिथुन हैड बेटर, करेक्ट द सेंटेंसेस हम कर रहे हैं, जो इनकरेक्ट है उसको। मिथुन हैड बेटर फिनिश हिज प्रोजेक्ट वर्क विथ विक, इट्स करेक्ट। वी आर सर्चिंग वी आर सर्चिंग फाइनाइट वर्ब्स। नेहा मस्ट टू एक्सरसाइज, देखो मस्ट है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, जो मस्ट है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, टू इन्फिनिटिव नहीं आता है। तो नेहा मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली। वी डू एग्री विथ यू, वी डू एग्री, तो ये बराबर है, ये करेक्ट सेंटेंस है। देन सिक्स्थ वन, शी मेड द लिटिल बॉय टू ड्रिंक सम जूस। तो मैड है, और जो मैड है वो प्रेरक वाक्य, जिसे हम हिंदी में प्रेरक वाक्य होते हैं, मैक, हैव और गेट। तो मैड वाला जब हम प्रेरक वर्ड यूज करते हैं तब उसे कॉजल ऑक्सिलरीज कहते हैं, कॉजल वर्ब कहते हैं उसको, कॉजल वर्ब। तो उसके साथ टू वाला वर्ब आता नहीं है। दैट्स व्हाई शी मेड द लिटिल बॉय ड्रिंक सम जूस, तो टू वाला वर्ब वहाँ से हमें निकाल देना है और हमें बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है। कॉजल ऑक्सिलरी, कॉजल वर्ब्स, प्रेरक जो वर्ब्स होते हैं उसको प्रेरक, मतलब दूसरे के पास काम करवाते हैं तो प्यार से, प्रेम से या किसी भी रीत से, तो उसको गेट, मैक और हैव से हैव हम यूज करते हैं। वी हैड बेटर टू गो टू द डॉक्टर टुडे, वी हैड बेटर गो टू द डॉक्टर, तो यहाँ पर भी हम बेटर के साथ टू वाला यूज नहीं यूज कर सकते, इसलिए मैंने वहाँ पे रिमूव कर दिया है। शी हेल्प्ड रेहान bag the cake. Here also they have not used infinitive, we have used here bare infinitive. Now let's move to I. Choose the correct answers. Choose the correct answers. One has been given. Now let's move to the second. The actor was asked to jump
over the fence. We use here to infinitive, to jump over. नॉन फाइनाइट वर्ब, जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट उसका पैसिव है, लेकिन जो इन्फिनिटिव है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो अपना फॉर्म चेंज करते नहीं, टू वाला वर्ब. सो द एक्टर वॉज आस्क्ड टू जंप ओवर द फेंस, तो टू जंप विल बी देयर. द क्रोकोडाइल did nothing all morning but bask in the sun. So here we have used bare infinitive. Crocodile did nothing all morning but bask in the sun. Do you know how to phone someone in USA? That is to infinitive we have used. Do you know how to? Why not go to the cafe Royal for dinner today? Go. Why not go? Bare infinitive. Then teacher made the students. देखो यहाँ पे प्रेरक वाक्य mad है, इसलिए टू वाला वर्ब नहीं आएगा. Apologize for being so rude. So that is bare infinitive. Now, seventh one, the passenger were asked to, passive, to infinitive, their baggage before the flight departed. Eighth one, I prefer to stay at home rather than to go for the play. So this, in the last sentence we have used infinitive to infinitives. Now let's see the third of non-finite, that is gerund. gerund है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा ही होता है, लेकिन उसके फंक्शन अलग है. ing वाला फॉर्म ही होता है gerund. जो gerund है वो नाउन का काम करता है. तो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज. तो स्विमिंग है वो ing वाला वर्ब है, लेकिन वो gerund है. क्यों gerund है? तो स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज. तो क्या बेस्ट एक्सरसाइज है? तो स्विमिंग. तो स्विमिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट काम कर रहा है. तो gerund है वो सब्जेक्ट का काम नाउन का काम करता है, और नाउन है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. आई लाइक स्विमिंग. व्हाट डू यू लाइक? स्विमिंग. ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे वो नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. ing वाला वर्ब है, लेकिन वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नाउन होकर काम करता है, उसको हम gerund कहते हैं. एंड आई एम रीडिंग अ बुक. आई एम रीडिंग अ बुक. तो ये ing वाला वर्ब है, लेकिन वो वर्ब का काम कर रहा है. नाउ लेट्स सी. Pritam enjoys singing, but Kiran prefer reading. The words in the bold are gerund. प्रीतम क्या एंजॉय करता है? सिंगिंग. लेकिन करण को क्या पसंद है? रीडिंग. तो बेटा क्या से और व्हाट और whom से क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये gerund हुआ. ing वाला वर्ब है, लेकिन वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है. gerund is the ing form of the verb that functions like a noun. In this sentence, the verbs singing, reading are verbs forms that are doing the work of nouns. They can easily be replaced by the nouns or noun phrase. Noun phrase का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ब. नाउन फ्रेज का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वो नाउन का काम करते हैं, तो उसको नाउन फ्रेज कहते हैं. प्रीतम एंजॉयज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, बट Kiran prefers sports. The gerund is often used after the verbs such as stop. gerund कब यूज होता है? स्टॉप, फिनिश, अवॉइड, प्रिवेंट, डिले, प्रेजेंट,
enjoy, postpone, forgive, practice, can't stand, dislike, like, suggest, can't, bear, don't mind, rise, keep on, can't help, repel, love, hate, and so many. So now let's see the exercises. Complete this sentence with the gerund form of the verbs in the box. One has been given. Madhvi likes writing the plants in the garden. Sorry. Madhvi likes watering the plants in the garden. तो ये watering the plants, watering मतलब पानी पिलाना, पानी पिला रहा है ऐसा नहीं, तो ये नाउन का काम कर रहा है. क्या पसंद है? वाटरिंग. क्योंकि क्या से क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और ऑब्जेक्ट नाउन होता है. मतलब मैं आम खाता हूं, क्या खाता हूं? आम. ऑब्जेक्ट मिला. समझ में आ रहा है? सो व्हाट से क्वेश्चन करना है. व्हाट डज माधवी लाइक? वाटरिंग. गोपाल सर लाइक्स रीडिंग. व्हाट डज गोपाल सर लाइक? रीडिंग. तो ये रीडिंग आईएनजी वाला वर्ब है, वो नाउन का काम कर रहा है और ये जीरंड है. गोपाल सर लाइक्स मूवी. व्हाट डज गोपाल सर लाइक? मूवी. तो ये ऑब्जेक्ट है. व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा और वो नाउन होगा, तो ये जीरंड होगा, आईएनजी वाला होगा. तो इट्स इजी वे टू फाइंड आउट. He was scolded by Mr. Sen for talking in the library. For what he was punished? Talking. तो ये जीरंड हुआ. बातें करना. बात कर रहा है नहीं, मतलब मैं बात कर रहा हूं. बातें करना मतलब क्लास में बातें करना गुनाह है. क्या गुनाह है? बातें करना. तो ये बातें करना मीन्स टॉकिंग. ना पीछे आता है तो ये नाउन हो जाता है और आईएनजी वाला इसलिए वो जीरंड है. मिस्टर माथुर हैड टू पे ह्यूज फाइन फॉर ड्राइविंग अबाउट द स्पीड लिमिट. किसके लिए उसको जो वो पे करना पड़ा? तो ड्राइविंग के लिए. आई लाइक ड्राइविंग. व्हाट डू यू लाइक? ड्राइविंग. आईएनजी जीरंड. और वो नाउन मतलब नाउन है यहाँ पे और आईएनजी वाला इसलिए जीरंड है. ड्राइविंग इज माई हॉबी. तो ड्राइविंग क्या हुआ? क्या आपका हॉबी है? ड्राइविंग. सो दिस इज जीरंड. सोनू एंड सुधीर लाइक फ्लाइंग काइट्स ऑन द टेरेस. क्या पसंद है उसको? उड़ाना, पतंग उड़ाना. तो ये जीरंड है. माई फादर एंड अंकल ऑफन गो फिशिंग. क्या करने जाते हैं? फिशिंग. मच्छी मारी कहते हैं जिसको फिशिंग कहते हैं वो. तो वो नाउन हुआ और वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. प्लकिंग, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है. प्लकिंग फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड हियर. फूल तोड़ना वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है. नाउ स्विमिंग in the pool is not allowed after gerund ing. Swimming is the best exercise. Gerund. The rigorous training helped Nadia to win the gymnastic competition. So these are the gerunds we have used here. Now let's move to K. Underline the ing verbs in this sentence. Write G for the gerund and P for the participles. Hearing the bell. हमने यूज किया था पार्टिसिपल हियरिंग. पहली वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें. गेटिंग, राइटिंग, चेकिंग. So this is
present participle. And he spoiled his health by eating unhealthy food. By eating unhealthy, तो that is चिरन. कैसा फूड है तो क्या unhealthy. Now we saw a young woman standing near the fountain. Standing, खड़ी. So that is चिरन. Now Aditya and his sister Nirmala enjoy painting. क्या enjoy करते हैं? Painting, चिरन. Talking on the phone for a long time is not allowed. Talking. क्या करना allowed नहीं है? Talking, चिरन. I was getting, that is participle, present participle, disturbed by the constantly ringing cell phones. क्या आपको डिस्टर्ब कर रहा है? Ringing, बजना, that is चिरन. Now we spent the whole week planning for the party. Planning for the party. ing, वो टेंस नहीं बता रहा है, वो नाउन बता रहा है, चिरन. Russell congratulated her for having won the competition. Having won. So here, having won the, so here it is present participle, but by mistake we have written the G. Having won the competition. अगर वर्ड से क्वेश्चन करोगे तो नहीं मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है. Our car is need of servicing, that is चिरन. किसकी जरूरत है? सर्विस की. Clapping their hands, the audience cheered the singer. Clapping their hands, चिरन, that is. They enjoyed taking long walks along the trail, that is taking, चिरन. The team getting the most correct answers win the quiz. The team is getting, then it is present participle, but it is without helping verbs and it acts as चिरन. Now let's move to the last exercise of the sentence of the chapter. Rewrite the sentences replacing the verbs in the infinitive with चिरन. David likes to play football in the evening. David likes playing. So we have rewrite the sentence replacing the verbs in the infinitive with चिरन. तो यहाँ पे देखो हमने टू वाला वर्ब निकाल दिया और playing. David likes playing football. Now the little girl started to cry. To cry है वो निकाल देना है और वहाँ पे ing वाला वर्ब लगाना है. When she saw her mother leaving. So the little girl started crying when she saw her mother. So टू वाला वर्ब है, टू इन्फिनिटिव, उसको रिमूव करके हमें चिरन वहाँ पे हमने यूज किया है. People in sales jobs love to travel throughout the year. The people in marketing love traveling. On the place of to travel, we have used traveling throughout the year. Nancy prefers to study. Nancy prefers studying alone. To study on the place of, we have used studying. The bird started to build their nest in the spring. The bird started building their nest in the spring on the place of to verb. And Peter has to get up. So Peter hates getting up. So on the place of to get, we have used getting up, चिरन, early in the morning. Peter hates to get up early in the morning. Peter hates getting up early in the morning. The tenants continue to pay their rent on time. The tenants continue
paying on the place of to pay their rent on time. So these were the infinitives we have explained. These are participles, infinitives and gerunds. It's a very easy and useful chapter for us, and it's not so tough, so you can also try yourselves at home to use present participle, then past participle in different sentences, gerund and present participle. What is difference between gerund and present participle? We can make the sentence and try to identify what is different between finite and non-finite verbs. The non-finite verbs don't change their form according to the tense, person or number, but the finite verbs, they change their forms according to the tense, number and persons. So this is the explanation. I hope and trust you have got it, and you will also try at home to use the non-finite verbs and try to make the sentences. And ask to your friend or brother if he knows about non-finite verbs or he is able to answer or correct it, and this way you can practice at home. Thank you very much.